Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about applications of chemical reactions. Now we are going to study about chemical equations and their balancing. Firstly, we need to know that what is meant by chemical equation. Chemical equation is basically a representation of a chemical reaction in terms of symbol, formulae and signs. As we have already discussed that in a chemical reaction, the substances that react together are known as reactant, while the substances that are formed as a result of chemical reactions are known as products. So in this reaction, these are the reactants and this is the product. In a chemical equation, the reactant and the products are separated by an arrow. Symbols of reactants are written on the left-hand side of the arrow, while the products are written on the right-hand side of the arrow. The arrow is directed towards the products. Physical states of reactants and products are also expressed along with their symbols. For example, as in this equation, as you can see that there is a small s and small g. This small s shows that the sulfur is in solid state while oxygen and the sulfur dioxide is present in gaseous state. There is another example of chemical equation. As in this equation you can see that the reactants and the products are separated by an arrow and this arrow is directed towards the products. The substances that react together are known as reactant and are present at the left side of the arrow, while the substances that are produced after the reaction are present at the right side of the arrow. And the physical states of the reactants and the products are also expressed along the symbols and the formulae of reactants and products. As in this equation you can see that the zinc is in solid state while H2SO4, which is sulfuric acid, is present in aqueous solution state, while zinc sulfate is also in aqueous form and hydrogen is present in the gaseous state. तो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन या कीमियाई मसावात से मुराद है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स, फॉर्मूलों या साइंस की मदद से जाहिर करना। यानी जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स, फॉर्मूले या फिर साइंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। केमिकल इक्वेशन में वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं वो मुतामलात यानी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास आ रहे हैं वो हासलात या फिर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स यानी मुतामलात और हासलात को एक एरो की मदद से सेपरेट किया जाता है। इस एरो के बाएं जानिब हम मुतामलात या रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, जबकि दाएं जानिब इसके प्रोडक्ट्स या फिर हासलात को लिखा जाता है। और इसके साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो तबई हालतें हैं यानी जो उनकी स्टेट्स हैं उनको भी ज़ाहिर किया जाता है और उनको ज़ाहिर करने के लिए सिंबल्स या फार्मूला के नीचे स्मॉल एस, स्मॉल एल, स्मॉल जी या स्मॉल ए और क्यू लिखा जाता है। जैसे इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि सल्फ़र के साथ जो स्मॉल एस लिखा गया है वो ज़ाहिर कर रहा है कि सल्फ़र सॉलिड स्टेट में है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है और सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जो स्मॉल जी लिखा हुआ है वो शो कर रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी गैसियस फॉर्म में है। इसी तरह इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक एरो की मदद से सेपरेट किया गया है। रिएक्टेंट्स जो हैं वो एरो के बाएं जानिब, जबकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एरो के दाएं जानिब हैं। और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो तबई हालतें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको भी साथ मेंशन किया गया है। जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है यानी लिक्विड फॉर्म में है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास और जो जिंक सल्फेट है वो भी एक्वस फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। Balanced chemical equations are those equations in which number of atoms of each element on both sides of equation is equal. For example, this is a balanced chemical equation. As you can see that in reactants we have 2 hydrogen atoms and in products there are also 2 hydrogen atoms. So hydrogen atoms are balanced.
Now there is one chlorine in reactants, and in products there is also a one chlorine atom. About sodium. In reactant there is one sodium atom, while in products there is also a one sodium atom. Now let's move forward. There is one oxygen atom in reactants, while in products there is also one oxygen atom, as in water molecule. So all the atoms that are present in this equation are balanced. So we can say that this is a balanced chemical equation. स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या मुतवाज़न कीमियाई मसावात कौन सी मसावात होती है? मुतवाज़न कीमियाई मसावात या बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनकी तादाद बराबर हो, यानी जो मुतामलात और हासलात में एलिमेंट्स मौजूद हैं उन एलिमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होंगे वो तमाम एटम्स बराबर हों, तो उस इक्वेशन को कहा जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर मुतवाज़न कीमियाई मसावात। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को देखेंगे। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं और प्रोडक्ट में भी H2 शो कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्लोरीन को। रिएक्टेंट में 1 क्लोरीन एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम एटम को। रिएक्टेंट में हमारे पास 1 सोडियम एटम मौजूद है और प्रोडक्ट में भी 1 सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम भी बैलेंस हो गए। अब हमारे पास बच गया ऑक्सीजन एटम। रिएक्टेंट में भी 1 ऑक्सीजन है, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी 1 ऑक्सीजन एटम है। जब तमाम एटम्स की तादाद इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। An unbalanced chemical equation is that equation in which number of atoms of each element on both sides of equation is not equal. As you can see in this equation there are 2 hydrogen atoms in reactant, while in products there is only 1 hydrogen atom. Similarly, there are 2 chlorine atoms in reactants, and in products there is only 1 chlorine atom. So all the atoms are not balanced in this equation, so we can say that this is an unbalanced chemical equation. तो स्टूडेंट्स, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है या जो गैर मतवाज़न कीमियाई मसावात है वो एक ऐसी मसावात होती है जिसके अंदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी तादाद बराबर नहीं होती। जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से रिएक्टेंट में हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ 1 क्लोरीन एटम है। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी तादाद एरो के दोनों साइड्स पर बराबर नहीं है, तो इस वजह से इस इक्वेशन को हम गैर मतवाज़न कीमियाई मसावात कहेंगे। So students, we have discussed about chemical equation and their balancing. Now there is a question, define a chemical equation. The answer of this question is, a chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbol, formulae and signs, etc. Now what are the specifications of chemical equation? In chemical equation, the reactants and the products are separated by an arrow. Symbols and formulae of the reactants are written on the left hand side of the arrow, while the products are written on the right hand side of the arrow. The next point is, the arrow is directed towards the product. Physical states of reactants and products are also expressed along with their formulae or symbols by small s, small g and aq, which stands for solid, gas and aqueous state respectively. Then we have discussed about the chemical equation by an example, in which sulfur is in solid state and oxygen in gaseous state. When sulfur and oxygen react together, then they form sulfur dioxide, which is also a gas. Then there is another example in which zinc is in solid state and sulfuric acid is in the form of aqueous solution. When zinc and sulfuric acid react together, then they form zinc sulfate and hydrogen gas. Now the next question is, what is a balanced chemical equation? The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and the product sides, are equal is called a balanced chemical equation. There is an example of balanced chemical equation which we have already discussed. The next question is, define an unbalanced chemical equation.
द केमिकल इक्वेशन इन विच the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and the product side, is not equal is called an unbalanced chemical equation. This is the example of an unbalanced chemical equation. तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो है कीमियाई मसावातें और इनको मुतवाज़िन करना। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है कि कीमियाई मसावात की तारीफ़ करें। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शंस का सिंबल, फार्मूला और इशारों की सूरत में ज़ाहिर करना कीमियाई मसावात कहलाता है। फिर कीमियाई मसावात में कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं। कीमियाई मसावात में मुतामलात और हासिलात के दरमियान तीर का निशान लगाया जाता है। मुतामलात के सिंबल्स और फार्मूलों को तीर के बाईं जानिब जबकि हासिलात को तीर के दाईं जानिब लिखा जाता है। तीर का रुख हासिलात की जानिब होता है। मुतामलात और हासिलात की तबई हालतों को ज़ाहिर करने के लिए सिंबल्स या फार्मूलों के नीचे स्मॉल s, स्मॉल l, स्मॉल g और स्मॉल aq लिखा जाता है, जिसका मतलब बिलतरतीब ठोस, माया, गैस और आबी होता है। इसके बाद हमने ये दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मुतवाज़िन कीमियाई मसावात से क्या मुराद है। ऐसी कीमियाई मसावात जिसमें तीर के निशान की दोनों जानिब यानी मुतामलात और हासिलात में हर एलिमेंट के एटमों की तादाद बराबर हो, मुतवाज़िन कीमियाई मसावात कहलाती है। और फिर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात को हमने एक मिसाल के थ्रू अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है गैर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात की तारीफ़ करें। ऐसी कीमियाई मसावात जिसमें तीर के निशान की दोनों जानिब यानी मुतामलात और हासिलात में हर एलिमेंट के एटमों की तादाद बराबर ना हो, गैर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात कहलाती है। और फिर हमने गैर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात की मिसाल देखी जिसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मौजूद एटम्स की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से ये एक गैर मुतवाज़िन कीमियाई मसावात है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करवाए गए हैं, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।